Good evening and welcome to this class on Indian polity. In this class, I'm going to deal with first of all the remaining doctrines. As I told you in the previous class, doctrines basically mean the principles that we have in the Constitution of India in order to give the predictability to the way we govern our country, to the way, in order to give predictability to the way things are done, okay, to the way in which polity is run in our country. तो उस चीज को predictability देने के लिए हम ये करते हैं, right? Now let's get started with it. The three organs of state, every organ of the state at one point or the other wise to come to the center stage, that is governance, legislature, executive and state, ये हमने कवर कर लिया था. तो इसके बाद हमने preambular prism, जो भी कुछ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अगर कोई लैक ऑफ क्लैरिटी आता है, इफ देयर इज एनीथिंग गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, if there is any lack of clarity, if there is any lack of clarity around the same, then you can apply the test of preamble. Test of preamble would tell you कि उसमें एक्चुअल में है क्या, राइट? प्रियम्बुलर प्रिंसिपल, जो उसमें एडवर्ब्स दे रखे थे, उन एडवर्ब्स के जरिए, उन एडजेक्टिव्स के जरिए हम ये देखेंगे कि क्या उस वर्ड का मीनिंग एक्चुअल में होना चाहिए, इवन इफ देयर इज समथिंग मिसिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. But if you see the constitution through the prism of, through the spectacles of preamble, there would emerge some clarity. तो उस पे क्लैरिटी हो जाएगी, राइट? Is that clear? All right. So this is, if the law is able to stand the test of the prism, then okay, law can be declared. तो हम पिछले दिनों preamble जो पढ़ रहे थे, तुमको मैंने बताया था कि yes, preamble is a legal part of the Constitution of India. We were covering preamble also the other day, if you remember. Let me take you to that thing also, so that we can first complete that discussion on the preamble to the Constitution of India side by side. So this was that document that we were studying from the other day. All right. तो उस दिन हमने देखा कि preamble is a part of the Constitution of India, but preamble is a part of the Constitution of India. In Keshwanand Bharti case, Supreme Court changed its stance. Supreme Court held that preamble is a part of the Constitution, and it went on to say that Constitution should be read through the prism of preamble. Constitution 42nd Amendment Act 1976 inserted these two words: secular, socialist and integrity. Initially, in the original text of the preamble, these words were not there. In LIC case, Supreme Court again reiterated the same position, that preamble is an integral part of the Constitution, but preamble is non-justiciable part of the Constitution. Okay, today the position is that in the right to privacy judgment, Justice Chandrachud cited preamble as the basis, as one of the sources apart from the Article 21. Is that clear? Somebody please share the link of the Telegram channel. साक्षी बच्चे, इस कोर्स के पेज पे जाओगे, वहां पे टेलीग्राम का लिंक एम्बेडेड है ऑलरेडी. क्लियर है? ये देखो, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. Right, Berubari case 1960. Supreme Court said the preamble throws light on several vague principles enshrined in the Constitution. Okay, despite this, Supreme Court held that preamble is not a part of the Constitution. In Keshwanand Bharti case 1973, changing its stance, Supreme Court held that preamble is a part of Constitution. Keshwanand Bharti case, देखो stand Supreme Court का zigzag हो रहा है. बेरूबारी केस में कहा preamble throws light on the several parts. Despite this, खुद ही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि preamble is a part of Constitution. Despite this,
Supreme Court held that preamble is not a part of constitution. So this is a kind of mockery of the constitution, isn't it? Now, LIC case, Supreme Court again reiterated the same position that preamble is an integral part of the constitution, but preamble is non-justiciable part. Non-justiciability का मतलब ये है कि preamble constitution का part तो है, but preamble cannot be the basis to legally take a stand. That this is given in the constitution, socialism is given in the constitution, so socialist democracy is defendable. You have to implement socialist democracy because it is given in the preamble. No, you cannot do that. जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि हाँ आप कोर्ट जा सकते हो अगर कोई चीज जस्टिसिएबल है. You can go to court and say that this is justiciable, this is written, so you have to implement that. Clear? But if something is non-justiciable, you cannot go to the court and say that this thing is given in the preamble, please give that to me. Please implement that. Please ask the government to do this as this is given in the constitution. No. Okay, Sakshi, please ping me hi on Telegram channel. My ID is Jatin Verma 0509. Okay. All right. So this is there. Now, coming to the other aspects, practice questions, previous year mains questions, discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? Discuss each adjective attached to the word republic. तो ये हमने उस दिन क्वेश्चंस पढ़े थे. तो अब एक क्वेश्चन किसी बच्चे का आया था, स्टूडेंट का, प्रवीण का था वो क्वेश्चन कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, इट इज टू बी रेड अलोंग विद कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रियम्बल को डिलीट करना इतना आसान नहीं है, खासकर वो चीजें जो प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेजेंट हैं. ठीक है. अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रियम्बल के, ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्लेसेस पे दे रखे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं, उनको आप अमेंड नहीं कर सकते. तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है, can we amend the preamble itself? Yes, we can amend the preamble, but not the provisions which are a part of basic structure of constitution as given in the preamble. Clear? Am I clear to everyone? Is this clear? Okay. Now, India has got the positive concept. ये भी मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए थे. अमेंडेबिलिटी, केशवानंद भारती केस 1973, when the Supreme Court was petitioned that preamble cannot be amended under Article 368 of the Constitution. When the Supreme Court was reached by some petitioner, किसी ने ये केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट held that even though the preamble is a part of the constitution, it can still be amended under Article 368, provided that no amendment is made to the basic features. Provisions of the preamble which are a part of basic structure: secularism, sovereign, socialist, democratic, republican structure, social justice, concept of social and economic justice. Okay, all these things are there. Only those things which are mentioned in the preamble alone are non-justiciable. Okay, that means that only. Navneet, in January 2015 a controversy erupted. This I had explained fully well. Now, the inclusion of the words socialist and secular is best seen as an explication of the ideals of modern India, ideals the modern India has drawn directly from the freedom struggle. The inclusion of the words socialist and secular is best seen as an explication of ideals the modern India has drawn directly from the freedom struggle. Granville Austin said that the roots of these principles could be traced to the 1931 Karachi Congress resolution. Granville Austin ने कहा कि इन principles के जो roots हैं, they could be traced to the 1931 Karachi Congress resolution.
and to the two streams of socialist and nationalist sentiments. Two streams of socialist and nationalist sentiments in India that had been flowing ever faster since the late 1920s. Even Morarji Desai led Janata Party government, in which the Janasangh was a constituent, did not think it necessary to delist these two words when they enacted the. अब देखो अगली सरकार भी जब आई, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार जब आई, उन्होंने भी जरूरी नहीं समझा सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को डिलीट करना. Even though these words were added later on to the constitution, to the preamble, they were not there in the original preamble. Indira Gandhi government had added them. बट फिर भी इनको डिलीट करना, अगर इसमें कोई वाकई ही गलती होती, अगर जेन्युइनली इसमें कोई गलती होती तो अगली सरकार उसे आके डिलीट कर देती, जनता पार्टी की सरकार आके डिलीट कर देती. यानी कि जनता पार्टी की सरकार ने उसमें गलती नहीं समझी. हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि क्या ये दोनों वर्ड्स को डिलीट करना जरूरी है? अगर कोई अमित शाह मिनिस्टर या कोई भी ये कहता है कि ये दोनों वर्ड्स तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं तो इन्हें डिलीट कर दिया जाए, तो हमारा आंसर ये प्रूव कर रहा है कि भले ही ये दोनों वर्ड्स, इवन दोज दीज टू वर्ड्स वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दे कुड स्टिल बी देयर. They still find a place, eminent place at various places in the constitution. तो इनको preamble से delete कर देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, कोई ज्यादा सब्सटैंटिव चीज नहीं होगी. preamble से delete करे जाने के बावजूद भी ये हमारी constitution का एक अहम हिस्सा हैं, एक अहम हिस्सा थे, एक अहम हिस्सा रहेंगे. Essential part of the constitution, and moreover Supreme Court has read them as basic part of the constitution. Basic structure of constitution में भी ये दोनों words लिखे गए हैं. समझ में आया? Is it clear to everyone? All right. Shall we proceed further now? Even the Morarji Desai led Janata Party government, in which the Janasangh was a constituent, did not think it necessary. Political scientists also emphasize that in S.R. Bomai case, please इसको याद करना है तुम्हें, S.R. Bomai case, the Supreme Court held that secularism is an integral part of the Constitution's basic structure. Secularism is an integral part of the Constitution's basic structure. With or without the amended preamble, Indian Constitution will remain secular. With or without the amended preamble, the Indian Constitution will remain secular, but the signal the dropping of these words would send will be disconcerting to the minorities. With or without the amended preamble, Indian Constitution shall remain secular. चाहे इनको delete कर दो, क्योंकि they find a mention at various places in the Constitution. Clear? गुरलीन कौर सुते हो ऐसी तुसी ना. प्रियम्बल की जगह ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है में है, अंतरात्मा में काफ़ी जगह मेंशन्ड हैं. अगर इनको आप प्रियम्बल में, जो कि अपने आप में नॉन जस्टिसिएबल है, अगर आप इनको वहाँ से डिलीट भी कर दोगे तो भी इनकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी. क्लियर? नॉन जस्टिसिएबिलिटी में भी. डन. Question: Is our polity living up to the letter and spirit of the preamble to the Constitution of India? Critically analyze. The captivating words sovereign, socialist, secular and democratic in the preamble are nothing more than pompous rhetorics. क्या हमारी पॉलिटी इन शब्दों की जो सारांश है उस तक जी पा रही है? Right? Is our polity living up to the this thing?
Now, sovereign. When we are the largest importer of arms and ammunition in the world, the term sovereignty is farce. When 80% of the people are economically weak, we can achieve the real socialism only by making the rich genuinely involved in the upliftment of the poor. Secularism, we say that our secularism means the equal treatment of all the religions, but the truth is that the gullible are falling prey to the self declared gods and messengers. अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो आसाराम, गुरमीत राम रहीम और रामपाल सिंह, ये सारे बाबाज क्या करते हैं, हमें हमारे जो भोले भाले लोग हैं उनको लूट रहे हैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड बन के। सेक्युलरिज्म तो है, धर्मनिरपेक्ष है इंडिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर की जजमेंट क्यों देता है? सुप्रीम कोर्ट अगर एक सेक्युलर कोर्ट है, सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, अगर कंट्री धर्मनिरपेक्ष है, कंट्री सेक्युलर है, तो एक सेक्युलर कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट, सरकार को यह कहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस मंदिर का नींव पत्थर रखो, इस मंदिर का जो इनॉग्रेशन स्टोन है उसको रखो। ऐसा कहना गलत है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है ना। द सेक्युलर कोर्ट ऑफ अ सेक्युलर कंट्री शुड नॉट इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट to start the foundation stone laying ceremony of the temple within 3 months, that too when the land was controversial for last 3 centuries, more than 3 centuries। समझ में आया इसका सारांश? क्लियर है ये? मेंशनिंग ऑफ काउ ये भी हमने देख लिया, डेमोक्रेसी इज अ 2-वे रोड ये भी देख लिया, जस्टिस भी देख लिया, इकोनॉमिक जस्टिस, सारा कुछ कवर हो गया था ना ये। अब लेट्स टर्न डायरेक्टली टू the prisms, that the doctrine that we were seeing, okay? So doctrines, doctrine of colorable legislation मैंने बता दिया था, right? Doctrine of judicial review, judiciary can declare any law to be unconstitutional if any law takes away or abridges any of the fundamental rights. Doctrine of colorable legislation, basic meaning, when anything is basic meaning, when anything is prohibited directly, it is also prohibited indirectly। अगर कोई चीज directly prohibited है। pompous rhetoric होता है हवाबाजी वाले words, ठीक है? pompous, pomp and show बोला जाता है ना, वो पार्टी में pomp and show कि तमाशा हो रहा है, ढोल धमाके बज रहे हैं ना। पॉम्पस ऐसे लगता है कि एडजेक्टिव्स, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, लेकिन अंदर से खोखले हैं। रेटरिक मतलब समथिंग दैट इज रिपीटेड, एक नैरेटिव बन गया है जो सब कोई बोलता है, लेकिन जब उसको अंदर से टटोला जाए, जांचा जाए कि क्या इंडिया वाकई ही डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, तब कहीं खोखली सी पिक्चर नजर आती है कि इंडिया ऐसा है नहीं, लेकिन दिखाने को कहा जा रहा है, राइट? गॉट इट? पॉम्पस रेटरिक्स का मतलब डेकोरेटिव वर्ड्स है, बस इंग्लिश के फ्लैशी से वर्ड्स हैं पॉम्पस रेटरिक। Clear? So this is there. Now in our constitution this doctrine is usually applied to article 246, which has demarcated the legislative competence of the parliament and the state legislative assemblies by outlining the different subjects under list 1 of the union। ये हमारा क्लियर हो गया था, फटाफट से बताओ। I did explain that in the previous class held on Friday, I think थर्सडे और फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उसमें ये समझाया गया था। Answer quickly, everyone. Each one of you should answer these simple questions, no?
सो एवरीबडी इज क्लियर। तो अब फेडरलिज्म का डॉक्ट्रिन हो गया। देन फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाज द लास्ट वन दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस द अदर डे। ये लास्ट था जो उस दिन हमने समझा था कि कोई भी इफ देयर इज एनी फंडामेंटल राइट व्हिच अब्रिजेस ABRIDGES, if there is any fundamental right which takes away the fundamental, if there is any law which takes away the fundamental rights, that law will be eclipsed. That law shall be eclipsed to the extent it violates. That law shall be eclipsed to the extent it violates the fundamental rights. ठीक है, समझाया गया था कुसुम, बहुत अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूं। द कोर्ट सेड दैट द लॉ विल बिकम वॉइड नॉट इन टोटो, पूरी तरह से वो लॉ वॉयलेट नहीं होगा, बट द लॉ विल बी वॉयलेटेड टू द एक्सटेंट इट वॉयलेट्स, टू द एक्सटेंट दैट इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? Law became void not in toto or for all the purposes or for all the times or for all the persons, but only to the extent of such inconsistency, that is to say, to the extent it became inconsistent with the provisions of part 3. यानी कि doctrine of eclipse is specifically, please jot down, doctrine of eclipse is specifically limited to part 3 of the constitution. Okay? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट है तो वो कोई लॉ है, ये वाइट वाला जो है ये लॉ वाला पार्ट है। ठीक है, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के सूरज को कवर करता है तो वो लॉ उस हद तक, जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कुचल रहा है, उस हद तक वो लॉ एक्लिप्स हो जाएगा, छुप जाएगा। To the extent that fundamental rights should be allowed to blossom fully, should be allowed to spread their light fully. ये काला वाला जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स का सूरज है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं पूरी तरह से खिलने चाहिए। ब्रिटिश एरा में कुछ लॉ ऐसे भी बनाए गए थे जो लॉ हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में, फ्रीडम के बाद वाले इंडिया में, जबकि सिटीजन इज द सॉवरेन, आप और मैं, हम सब भारतवासी जो हैं इंडिया में सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर हैं, पावर का सुप्रीम सोर्स हम ही लोग हैं। अब जब हम ही लोग हैं पावर का सुप्रीम सोर्स, तो कोई और कैसे आ जाए, कोई और लॉ कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्रिपल कर सकता है, छुपा सकता है, तोड़ सकता है ना, कुचल सकता है। तो कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छुपा रहा है, वो लॉ उस हद तक, जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छुपा रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल अपॉन द लॉ विच इज क्रिपलिंग द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? Alright, so these things are there. Now, by definition, अब ये समझ में आ गया। देखो, इसके दो क्लॉजेज हैं। एक तो क्लॉज ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे है। अगर आज़ादी से पहले वाला कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबाता है, तो वो लॉ उस हद तक माना ही नहीं जाएगा जिस हद तक वो इनको दबाता है। क्लियर? दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई लॉ
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कोई लॉ बनाया जाता है, जैसे कि आधार एक्ट या कुछ ऐसा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबाएगा, तो वो लॉ भी उस हद तक नलीफाई कर दिया जाएगा जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबा रहा है। क्लियर? Is this clear to everyone? Now, by definition, a constitutional right is a legal right, one that comes above all other legal rights. By definition, a constitutional right is a legal right, one that comes above all other legal rights. Right? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ये क्लियर हो गया ना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स टू एवरीवन? एवरीवन शुड एटलीस्ट आंसर। इफ इट इज नॉट क्लियर देन ऑल्सो यू शुड रिप्लाई, बट इफ इट इज क्लियर देन ऑल्सो यू शुड रिप्लाई। उसमें भी अगर पैसे लग रहे हैं तो फिर गलत बात है। Clear to everyone? All right, so let's get started. What is the difference between legal rights, constitutional rights and fundamental rights? देखो, लीगल राइट सबसे पहले, फंडामेंटल राइट्स ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अगर मान लो कि ये कोई तलवार है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक तलवार है मान लो, अगर किसी को हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुचलना है, कत्ल करना है, तो सबसे बढ़िया टूल क्या है, सबसे मुश्किल क्या है, ये तलवार या ये स्वॉर्ड cannot reach to the extent of fundamental rights that easily. It's not very easy, it's not as easy to kill our fundamental rights as it is to kill our legal rights, ordinary rights. Then तलवार सबसे पहले कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, फिर उसके बाद यहां पहुंचेगी, फिर उसके बाद ही तो यहां पहुंचेगी, एकदम से थोड़ी फंडामेंटल राइट्स पे पहुंच जाएगी। सिमिलरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि जितना मुश्किल किसी राइट को कुचलना है उतना ज्यादा वो प्रोटेक्टेड है। फर्स्ट लेवल पे हमारा लीगल राइट है सबसे ज्यादा। अगर कोई सरकार मोदी सरकार जैसी हो जाए या इंदिरा गांधी सरकार जैसी हो जाए, तो सबसे जल्दी कौन सा राइट वो सरकार छीन सकती है, लीगल राइट। जो तुम देख रहे हो, सेडिशन की बात कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हो, है ना। फिर उसके बाद जो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि पार्ट 3, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, पार्ट 3 में दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड राइट्स। Fundamental rights are the most protected rights in the Constitution of India. Clear? Clear? Fundamental rights are the most protected rights. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। देखो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सोर्स ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना, जिनको राइट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 340 के अंदर ओबीसीज के राइट, SC ST के राइट्स, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका नाम है पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड वो है फंडामेंटल, मौलिक अधिकार, मूल, सबसे ज्यादा जो एक इंसान को इंसान वाली जिंदगी जीने के लिए चाहिए।
अब क्या रिजर्वेशन किसी का मौलिक अधिकार हो सकता है? नहीं, इसीलिए 340 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट क्या राइट टू इक्वालिटी, दो एक जैसे दिखने वाले भाई बहन एक जैसे ट्रीट किए जाने चाहिए? यस, तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट है। समझ में आया? जो हमारी पॉलिटी में हम लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये वो राइट्स हैं जो बुनियादी हैं। किसी को छुआछूत कह के, शूद्र कह के, अनटचेबल कह के धिक्कारना, किसी को सिर्फ इसलिए धिक्कारना क्योंकि उसका रंग काला है, गलत है। इसीलिए इनको, ऐसे सभी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है? फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड। व्हाई सो? फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड because you can go to judiciary directly. If your fundamental rights are violated, you can approach the judiciary directly. You need not go to the lower court, you need not go to the any other court, you can go to the judiciary, the most topmost judicial court, that is the Supreme Court or the High Court directly. But if there is some ordinary right, जैसे मैं अगर मनरेगा का वर्कर हूं, मेरी वेजेस नहीं मिल रही, तो वो मेरा एक ऑर्डिनरी राइट है। फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है कि मैं मर थोड़ी जाऊंगा उससे, कोई मेरे को अनइक्वल नहीं ट्रीट कर रहा, बट मेरा एक ऑर्डिनरी राइट है जो मुझे नहीं मिल रहा। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ लोअर कोर्ट में जाऊंगा कि मुझे मेरा वेतन नहीं मिल रहा, मुझे मेरी मनरेगा की वेजेस नहीं मिल रही। क्लियर? ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आईएएस ऑफिसर का केस स्टडी और ये सब हम करेंगे, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आते हैं कि कुछ ऐसे राइट्स हैं, अब सभी राइट्स को तो फंडामेंटल राइट्स का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तुम्हारे जैसे लोग क्या करेंगे, हाय मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, देखो यूपीएससी ने पार्शियलिटी करी है तो मैं फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। सारे राइट्स को तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुछ राइट्स जो कि एक इंसान को एक इंसानियत वाली जिंदगी जीने के लिए चाहिए, हमारी कंट्री में जिनको लीगल दर्जा फंडामेंटल राइट्स का दिया गया है, वो पार्ट 3 में लिखे गए हैं। फिर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि इक्वली एसेंशियल तो हैं, लेकिन उनको फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस नहीं मिला है, एंड दोज राइट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द सेकंड सर्कल राइट्स, एंड दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड। दैट मीन्स फॉर द वायलेशन ऑफ राइट्स, you cannot, for the violation of constitutional rights, you cannot go to the Supreme Court directly, but you can at least go to the High Court directly. हमारी कंट्री में बहुत सारे कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तहसील कोर्ट है। तो जो लड़ाई लड़नी है ऑर्डिनरी राइट्स के लिए, वो तो छोटे कोर्ट से शुरू होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इतने में उम्र निकल जाएगी, है ना। इट विल टेक यू एजेस to fight this legal battle from the subordinate court to Supreme Court. That is why the fundamental rights have been protected. और क्यों protected है fundamental rights? Fundamental rights क्यों है protected? इतना protection क्यों दिया गया है? देखो, मैंने पावर दे दी प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंदिरा गांधी को। अब वो अगर मेरी पावर को, मेरी दी हुई पावर को, सभी सिटीजन्स की दी हुई पावर को सिटीजन्स के ही खिलाफ यूज करने लग जाएं, तो हम बेचारे सिटीजन्स के पास कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, और वो प्रोटेक्शन क्या है? फंडामेंटल राइट्स। वी कैन फाइट अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट राइट एट द टॉप मोस्ट कोर्ट इन द कंट्री डायरेक्टली, बिकॉज वी आर डेलीगेटिंग ऑल आवर पावर टू द सिटीजन्स। हमारे पास फिर बचा ही क्या? 5 साल के लिए मोदी राज, गांधी राज, वो उसके 5 साल में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना उनको बदल सकते हैं, ना उनको बोल सकते हैं कि राइट टू रिकॉल है, तुम लोग वापस आ जाओ। नहीं, नोटबंदी तो नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन होगा तो होगा, फार्मर्स के खिलाफ लॉ पास कर दिया तो कर दिया। कम से कम उन बेचारे फार्मर्स के पास अपनी रोजी रोटी, अगर मैटर फंडामेंटल राइट्स का है कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए, उनको ट्रैक्टर रैली करनी है या उनको धरना प्रदर्शन करना है, तो ये फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्टेड है, उनको सरकार नहीं रोकेगी। और अगर सरकार रोकती है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके सरकार के रोकने के
उस डायरेक्टिव पे रोक लगवा सकते हैं जुडिशरी से। इज दिस क्लियर? अब आते हैं कि लीगल राइट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं। देखो, जैसा आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ दैट एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, or legal rights are rights which are flowing from the constitution only. Now let me explain this to you in another beautiful manner. एक मिनट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बेसिस पे लॉ बनाया जाता है। दिस एवरीबडी नोज इन माय क्लास, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन से जब हम कोई आर्टिकल पहले से दे रखा है और उस आर्टिकल में पूरा लिखा हुआ है कि दिस इज द राइट, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स हैं जिस पे लिखा है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मे गिव द राइट टू द पीपल। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि गवर्नमेंट शुड, द स्टेट ऑफ इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू गिव लाइवलीहुड टू द पीपल। अब शुड टेक स्टेप्स यानी कि डेफिनेटली ये राइट नहीं दिया गया। इट हैज बीन लेफ्ट टू द गवर्नमेंट कि जब गवर्नमेंट को लगे कि हेल्थ स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देना है तो गवर्नमेंट देगी, जब गवर्नमेंट को लगे कि आयुष्मान भारत जैसी स्कीम देनी है, मनरेगा देनी है, शिक्षा का अधिकार देना है तो सरकार देगी। यहां पे लिखा है स्टेट मे टेक स्टेप्स टू गिव एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पीपल। अब ये तो स्टेट पे डिपेंड करेगा, स्टेट कब देगी कब नहीं देगी, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग सो रहे हो साले उठ जाओ तुम फटाफट, जो सो रहे हो ध्यान से सुनो, इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। मम्मी पापा जिसको भी बोल रहे हैं बोलो चाय लेके आए, अच्छे से सुनो, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सीधे होके बैठो तुम लोग। ऑनलाइन एजुकेशन का सारा काम तुम लोगों ने गड़बड़ कर रखा है यहाँ। शैल आई स्टार्ट नाउ? अटेंटिव एवरीवन। देखो कुछ लॉज आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है 38 दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट लाइवलीहुड। स्टेट लाइवलीहुड तो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन लाइवलीहुड किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर स्टेट सबसे पहले पता है क्या करता है, स्टेट एक स्कीम लेके आता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2008 में लाई गई थी, ठीक है? स्कीम जब अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है फिर सरकार तैयार हो जाती है उसका एक्ट बनाने के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया। एक्ट का मतलब पता क्या है? अब ये स्टैट्यूट बन गया। एक्ट का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर वर्ड दैट वी यूज फॉर द एक्ट? स्टैट्यूट। स्टैट्यूट माने लॉ, स्टैट्यूट मींस लॉ। अब ये स्टैट्यूट और लॉ बन गया। अब जब ये स्टैट्यूट लॉ बन जाता है तो ये लीगली डिफेंसिबल हो जाता है। लीगली डिफेंसिबल मतलब you may or may not be allowed to go to the high court directly for the violation of your rights under the scheme, but you are legally entitled to file a case in the high court directly if it is an act। अब ये कहां से फ्लो हो रहा है? लिखा तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। an ordinary right given in the constitution, for that right you can go to the court directly। clear? कुछ चीजें क्लियर हुई? अभिषेक, व्हेन दी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट्स? ऑफलाइन क्लास के लिए एक बार नोटिफिकेशन आने दो, पक्का करते हैं इसको स्टार्ट। क्लियर? Shall we begin now? All right. तो the state, अब जब कोई राइट जो है स्टेट ने ये बना दिया कि हम इसको एक्ट के वे में, स्टेट के पास में दो ऑप्शन है, स्कीम या एक्ट। अब अगर स्टेट जो है स्कीम या किसी को स्कीम को एक्ट का रूप दे देगी तो वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है सरकार के ऊपर। जैसे पहले क्या था, अंत्योदय अन्न योजना AAY, लेटर ऑन बना दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लीगल राइट बना दिया इसको।
ठीक है, लीगल राइट बन गया ना, क्योंकि एक्ट बना दिया यानी कि लीगल स्टैट्यूट बना दिया। अब लीगल राइट तो फिर अपने वे में इंप्लीमेंट होगा, राइट। लीगल राइट विल बी इंप्लीमेंटेड in the manner that if it is not properly implemented, you can file a case in the court, that could be high court. But if it is a fundamental right, you can file a case directly in the supreme court. बट ये लीगल राइट है तो सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट तक आप डायरेक्टली जा सकते हो। अगर ये स्कीम वगैरह होता, कोई नॉर्मल स्कीम या प्रोग्राम होता, तो आप रेगुलर कोर्ट से, यानी कि जो लोअर लेवल का जो कोर्ट है वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। यदि आपकी सरकार आपको ये हक दे तो रही है लेकिन आपको नहीं मिल रहा, बाकी सबको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, या इसमें जो कहा गया है योजना में या प्रोग्राम में वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा, अब ऐसी चीज के लिए आप डायरेक्टली वहां जा सकते हो। क्लियर? सो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ अब समझ में आ गया? तो देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की चीज के लिए स्पेशल डायरेक्ट आर्टिकल दे रखा हो, बट वो फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट 3 के बाहर हो। सबसे पहले तो पार्ट 3 वाले राइट्स हैं, फिर दूसरे नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली दे रखा है कि ये राइट है, जैसे कि आर्टिकल 340। तीसरा राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल तो दे रखा है, लेकिन वो कहता है स्टेट में गिव दिस राइट टू द पीपल एट एन ऑपर्चून टाइम, जब स्टेट को लगेगा कि सही टाइम आ गया है तब। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इसको देखो, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, अब इसको देखो, समझ आ गया? ये फंडामेंटल राइट द इनर मोस्ट कोर, जैसे अर्थ का क्रस्ट होता है ना, सबसे अंदर जो लावा है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टेट जब वॉयलेट करने पे आएगी तो इसका मतलब ये है कि आप फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन के लिए डायरेक्टली टॉप मोस्ट कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो या ऑर्डिनरी कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वॉयलेट हुआ है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, ऑर्डिनरी कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में से किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, सरकार के खिलाफ अपील कर सकते हो। लास्ट लाइन मैंने ये कही, लास्ट लाइन दैट आई सेड इज कि हाई कोर्ट में ऑर्डिनरीली जब कोई ऑर्डिनरी, देखो सरकार के पास ऑप्शन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हमें मिल रखे हैं बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। पहले तो एक चीज़ ये समझ लो, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं। ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखना। अगर तुम्हारी, चलो मान लो अगर मेरी फैमिली जो है बहुत गरीब है, ठीक है, तो मेरी फैमिली में क्या हुआ कि पापा ने मम्मी से शादी करी और हम लोग पैदा हुए, जो भी हुआ, ठीक है, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि देखो बेटा, जो चीज़ें तो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए वो तो तुम्हें अभी मिल जाएंगी। क्या? कि तुम सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। एक फादर ने एक फैमिली से ये कहा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैंने बोला मुझे एसी चाहिए, तो उन्होंने बोला देखो एसी नहीं मिल सकता, अभी हम गरीब हैं, 1951 की बात है ये, फैमिली का नाम था इंडिया। फिर एक ने कहा, दूसरे भाई बहन ने कहा कि हमें एजुकेशन चाहिए, उन्होंने बोला एजुकेशन, या रोटी में तंदूर चल नहीं रहा और तुम्हें एजुकेशन चाहिए, अभी नहीं। तो फैमिली ने ये कहा कि अगर, फादर ने ये कहा कि अगर तुम्हारे ये राइट्स, ध्यान से सुनना,
कि अगर तुम्हारे, ये फादर हैं, ठीक है, फादर ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें एज अ मैटर ऑफ राइट दे रहा हूँ, और कुछ चीज़ें जो हैं तुम्हारे दादाजी ने मुझे डायरेक्टिव्स दिए हैं। डायरेक्टिव्स किसने दिए हैं? नाना जी ने। नाना जी ने क्या दिया है? बेटी, ठीक है, मदर यहाँ से आई है, तो फादर ने नाना जी को ये वचन दिए हैं। नाना जी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें, नाना जी कौन है? डायरेक्टिव्स। उन्होंने क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिख दी हैं यहाँ पे, कि कुछ चीजें तो बच्चों को राइट्स के मीडियम से उनकी बेटी को मिलेंगी ही मिलेंगी। शादी के पहले दिन से क्या इक्वल ट्रीट किया जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये चीजें मौलिक है ना। अगर किसी इंसान को बोलो कि तुम्हें इक्वल नहीं ट्रीट किया जाएगा, महिलाओं को बोलो शादी करने के बाद इक्वल नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो जी नहीं पाएंगी, सफोकेशन होगी, है ना। इसीलिए ये, और कुछ चीजें ऐसी थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिख दी, यानी कि फादर जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, जब फादर के पास पैसे वैसे आ जाएंगे, तो फादर ये चीजों को, इन डायरेक्टिव्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, ये आदर्श मान के स्टेट अपनी पॉलिसी, फादर, इंडिया नाम का फादर अपनी पॉलिसी बनाते टाइम याद रखेगा। डायरेक्टिव्स का मतलब ये है दोनों इक्वल, दोनों चीजें इक्वल हैं, लेकिन ये चीजें एक गरीब डेमोक्रेसी के वे से लग्जूरियस मानी जाती हैं। अभी इनके लिए पैसे नहीं हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या 1950 में स्कूल थे जो एजुकेशन की बात करते? नहीं थे। क्या 1950s में और चीजें थी जो अस्पताल की बात करते? जन औषधि योजना, राइट, जड़ी बूटियां खाते थे उस टाइम, जन औषधि की तो बात ही कहां से करें, एंटीबायोटिक्स थे ही नहीं। तो राइट टू हेल्थ, ये सारी चीजें, राइट टू रेम्यूनरेशन, लाइवलीहुड, ये था सबके पास देने को? नहीं, नंगे पुंगे घूमते थे हमारे लोग उस टाइम पे, कहां से दे लोगे? नहीं दे सकते। इसीलिए ये चीजें रख दी हमने इधर, और इनको बोल दिया, फादर को बोल दिया गया कि बेटा ये है नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि लोग फादर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, स्टेट, नेशन स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जुडिशरी में नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जुडिशरी में जा सकते हैं। आया समझ? बेसिक पार्ट ऑफ पॉलिटी, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड this thing, fundamental rights. बच्चे डीपीएसपीज जो है ना, वो ना अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने जो तुम्हें पहले वाले स्लाइड पे जो लिख के समझाया, स्टेट में प्रोवाइड। अब देखो, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, कल को जब सरकार के पास पैसे आ जाएंगे, ध्यान से सुनना, सारा कुछ भूल जाओ, मेरी बात सुनो। थोड़े दिन पहले ना हिंदू में एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में जो पैसे दिए जा रहे हैं ना 300 से 500, वो 10 साल से रिवाइज ही नहीं हुए।
समझ में आया? अब अगर सरकार उनको लॉ बना देगी, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन एक्ट बना दिया ना जैसे ही, तो लोग पता है क्या करेंगे? गरीब लोग हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं जो मोदी हूं, मेरा नाम है मोदी, मैं ये गलती नहीं करूंगा कि उनको स्कीम की जगह एक्ट बना दूं, क्योंकि मुझे कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना है, मेरी सरकार की बेइज्जती होगी। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं राहुल गांधी भी हूं, चाहे मनमोहन सिंह हूं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, मैं इसे स्कीम चलने दूंगा। क्योंकि ना स्कीम जो होती है, बच्चों ध्यान से सुनो, स्कीम जो होती है वो लीगली चैलेंजेबल नहीं होती, नॉन जस्टिसिएबल होती चैलेंजेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्ट बना दोगे तो लोग सीधा सीधा जुडिशरी भाग जाएंगे कि देखो ये लॉ बना रखा है पार्लियामेंट ने, लेकिन 300 रुपए में दवा नहीं आती। मैं गरीब आदमी हूं, गरीब आदमी बोलेगा कि देखो दवा नहीं आती, 300 रुपए का तो डिस्प्रिन का पत्ता हो गया, डिस्प्रिन की दवाई हो गई, ये हो गया, टीबी हो रखी है, ट्यूबरकुलोसिस, पान नहीं आता, मैं पान नहीं खाऊंगा तो मैं सोऊंगा नहीं, गरीब आदमी ये बोलेगा ना। एक्ट बनाने से सरकार फंस जाती है, स्कीम बनाने से सरकार थोड़ी कम फंसती है। स्कीम बनाओगे तो भी लोग जाएंगे कि देखो मेरा राइट टू लाइफ है, मेरे को मेडिसिन नहीं मिलेंगी, मैं गरीब आदमी, बूढ़ा हूं, 70 साल का हूं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में बनाई तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर है, लेकिन वो बनाई, अब यहां पे मे लिखा है ना, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब बनाएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो उन्होंने लिख दिया कि जब स्टेट की आर्थिक हालत, जब स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी सही होगी, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये लाइवलीहुड, ओल्ड एज केयर, ये सारा कुछ करना है या नहीं, लोगों को देना है तो कब से देना है, डेट इसमें नहीं लिखी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अगर ये चीजें लिखी होती, जो कि नहीं लिखी हुई क्योंकि तब हमारे पास पैसे नहीं थे, अगर ये चीजें लिखी होती तो इसमें डेट पहले दिन से लिखी गई होती और आप पहले दिन से ही कोर्ट जाने की हैसियत में होते हम लोग सरकार के खिलाफ, अगर हमें ये चीजें ना मिलती, पूरी ना होती। आज भी हमें इसमें से कई चीजें पूरी नहीं मिल रही। किसी को 300 रुपए पेंशन दो, 10 साल से 300 रुपए देते आ रहे हो, 20 साल से 300 रुपए देते आ रहे हो, 300 रुपए में क्या आ जाएगा? किसी का, गरीब आदमी का राशन पूरा हो जाएगा, बूढ़े आदमी का दवाई नहीं आती, तो वो बूढ़ा आदमी जाएगा कि देखो मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, सरकार क्या बोलेगी? टाइम टाइम फिश। अब अगर सरकार ये बोलेगी टाइम टाइम फिश, तो वो कोर्ट जाएगा? कोर्ट जा सकता है। सरकार ये बोलेगी मिलॉर्ड ये तो स्कीम है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये कहा था यू मे और मे नॉट इम्प्लीमेंट इट, यू मे इम्प्लीमेंट इट एट अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट टू यू। जैसे तुम पापा को बोलते हो एसी लगवा दो, पापा बोलते हैं नहीं है पैसे, तुम नाना जी के पास जाओगे, नाना जी को बोलोगे पापा बहुत कंजूस हैं, एसी नहीं लगवा के देते, तो पापा नाना जी को क्या बोलेंगे? कोर्ट में क्या बोलेंगे? पापा यही बोलेंगे ना कि देखो जी आपने अपनी बेटी देते टाइम मुझे ये नहीं कहा था कि मैं उनके बच्चों को एसी लगवा के दूंगा, ज्यादा दिक्कत है तो तुम लगवा दो, यही बोलेंगे ना। अब समझ में आया? अब अपने मम्मी पापा से जाके पूछना एसी लगवाया कि नहीं, मेरी जान मत खाओ। समझ में आया इधर? अब सबका डाउट क्लियर हो जाएगा कि घर पे एसी और गर्मी की बात हो गई है ना, अब गर्मियां ऐसे आ रही हैं। इसीलिए आई ड्रू एन एनालॉजी बिटवीन द फैमिली एंड इंडिया। India's position was same as that of a poor family way back in 1951. Any poor family in India is a microcosm of overall India. Yes, the state is not obligated to do so. अब समझ में आ गया? नाना जी कौन है? इसीलिए मैंने बोला था नाना जी हैं जुडिशरी, जो ज़्यादा ना नुकुर करते रहते हैं ना, सरकार के काम में दखल लग जाती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देखो कितने समझदार थे, उन्हें पहले से पता था कि ये सब बवाल होगा, कि तुम लोग ज़्यादा डिमांड करोगे। इसीलिए सरकार कभी भी कोई चीज़ लेके आती है ना, कोई नई डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जब इंप्लीमेंट करती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेबल, फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेबल सिंस डे वन। दे हैव टू बी इंप्लीमेंटेड बिकॉज दे आर फंडामेंटल, बुनियादी राइट्स, जो मेरे को एक इंडिया में अच्छे इंसान की तरह अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी चाहिए। अगर ये राइट्स पूरे नहीं होंगे
तो इंडिया अंग्रेजों के शासन में भी वैसा ही था और इंडिया अंग्रेजों के बाद भी वैसा ही है। यही तो डिफरेंस है ना डेमोक्रेसी में, कि लोगों के पास हक हैं कि अगर वो प्रेस में सरकार के खिलाफ कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, कि उनके पास हक है कि वो उनको इक्वली ट्रीट करे सरकार। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब सरकार कभी कभी क्या करती है, जो काम मुश्किल होता है, सरकार गलत नहीं है, जो काम मुश्किल होता है सरकार उस काम को किससे करती है, स्कीम के माध्यम से करती है। सरकार पहले स्कीम लेके आती है, फिर जब सरकार को दिखता है कि हाँ अब इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो सरकार उस चीज के अराउंड एक्ट पास कर देती है। स्कीम को अबॉलिश कर दिया, स्कीम की सारी चीजें गारंटी कर दी, और इसको बोला जाता है राइट टू एजुकेशन इज स्टैट्यूटोरियली गारंटेड। पहले जो सर्व शिक्षा अभियान था, अभियान मतलब कोशिश, अब जब वो सर्व शिक्षा अभियान कामयाब हो रहा है, तो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था बहुत पहले, ठीक है, 1990s में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। फिर उसके 10-12 साल बाद जब वो अच्छे से इंप्लीमेंट होने लग गया, सरकार को पता है हाँ अब तो हम बहुत श्योर हैं कि हम इसको कर लेंगे, तो सरकार उसका एक्ट बना देती है। एक्ट बना दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब अगर तुम में से कोई, राइट टू एजुकेशन एक्ट में पता है क्या लिखा है, कि 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। अब अगर तुम, कोई बच्चा कोर्ट जाए, वो ये बोले कि मेरे घर के पास 10 किलोमीटर में स्कूल नहीं है, सरकार बोलेगी कोई बात नहीं, ये लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेक दे दिया कि इसके एरिया में स्कूल बनवा दो, हो गई छुट्टी। लेकिन अगर पहली बार जब ये सर्व शिक्षा अभियान के वे से डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, पहली बार जब इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया गया था, तो स्टेट के पास में इतने पैसे नहीं थे कि छटाछट चेक काट के दे देगी, राइट। इसलिए स्टेट ने इसको स्कीम के वे में लाया। तो जब कोर्ट में किसी ने केस किया कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान स्कीम में लिखा है कि मेरे एरिया में 10 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए, लेकिन मेरे एरिया में स्कूल नहीं है, तो सरकार ने बोला मिलॉर्ड हमारे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी ये तो एक अभियान है, हम एक कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द हम एक्ट लेके आएंगे, तब स्टैट्यूटरी गारंटी हो जाएगी, तब आप हमें जो सजा चाहो दे देना, जो पेनल्टी चाहो लगा देना, लेकिन अभी तो ये एक स्कीम है। अब समझ में आया डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच। अप्रोच कैसे है, आप किस वे से एक स्कीम को, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो, स्कीम के वे से या एक्ट के वे से। DPSPs could be implemented in two ways. एक्ट को स्टैट्यूट लिख लो, इसको बना लो। ठीक है, advantages of implementing a scheme.
समझ में आ गया? Yes, Varsha, you are right. Okay. When a scheme is implemented by way of an act, so it is relatively more prone to challenges in court of law. COL मतलब कोर्ट ऑफ लॉ. LOL मत कर देना, लोल, राइट? COL है कोर्ट ऑफ लॉ. अगर कोई स्कीम, अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीधा ही एक्ट के वे से इंप्लीमेंट किया जाए तो उसको कोर्ट में चैलेंज होने की संभावना, कोर्ट के हस्तक्षेप, कोर्ट के इंटरफेयर करने की संभावना ज्यादा हो जाती है. क्लियर? क्लियर? तो ये था हमारे आज के लेक्चर में. क्लियर? See you at 7:30 for the economic survey class. Those of you who are in the Super 50 batch or those of you who are in the GS batch for 2022, you need not watch this class, economic survey class. आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए है. कूल? समझ आ गया? ठीक है, तो कल मिलते हैं दोबारा से इसी समय पॉलिटी की क्लास के लिए. थैंक यू गाइज, बाय बाय. थैंक यू.